السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری کو محدثین کی جماعت میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ امام بخاری وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث اور روایات جمع کرنے کا عظیم کام انجام دیا۔ اس کام میں انہوں نے اپنی زندگی کی آسائش، آرام، دولت سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کام میں جو کامیابی امام بخاری کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے محدث کے حصے میں نہ آ سکی، اس لیے آپ امام المحدثین اور امیر المومنین فی الحدیث قرار پائے۔ ان کی پرکھی ہوئی احادیث پر مکمل وثوق کا اظہار کیا گیا۔ آپ نے یہ کام انجام دے کر جفاکشی کی ایک مثال قائم کر دی۔ مسلمانان عالم آج امام بخاری سے خاص محبت رکھتے ہیں۔ جن احادیث پر بخاری کا حوالہ نظر آ جائے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان حالات میں ایسے شخص کے حالات کون جاننا پسند نہیں کرے گا؟ لہذا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ سی ڈی اہم نوعیت کی قیمتی ترین سی ڈی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں امام بخاری، پیشکش محمد طارق شاہد۔ ماں باپ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد کا نام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ تھا۔ ان کی کنیت ابو الحسن تھی۔ بڑے پائے کے محدث تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ گویا امام بخاری اور ان کے والد دونوں ہی محدث تھے۔ یہ فخر اسلام میں کم لوگوں کو حاصل ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بہت عبادت گزار تھی۔ امام بخاری کی آنکھیں چھوٹی عمر میں خراب ہو گئیں۔ طبیب علاج نہ کر سکے۔ والدہ محترمہ نے اللہ سے دعا کی تو ایک خواب میں انہیں بشارت دی گئی کہ تمہارے رونے اور دعا کرنے پر اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ والدہ کہتی ہیں اسی صبح میرے بیٹے محمد کی آنکھیں درست ہو گئیں اور پھر بینائی اس قدر تیز ہو گئی کہ آپ نے تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی۔ امام بخاری اجمی النسل تھے۔ ان کے پردادا مغیرہ نے بخارا کے حاکم یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بخارا میں رہائش اختیار کی۔ آپ کے والد اسماعیل نے حماد بن زید، امام مالک، ابو معاویہ سے احادیث روایت کی۔ عبداللہ بن مبارک کی صحبت میں رہے۔ امام بخاری نے خود اپنے والد کا ذکر تاریخ کبیر میں کیا ہے۔ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ امام بخاری کے والد اسماعیل نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا، میرے علم کے مطابق میرے مال میں ایک درہم بھی حرام کا یا مشتبہ نہیں ہے۔ زمین کے جس خطے میں امام بخاری کی ولادت ہوئی وہ علاقہ خراسان کا مشہور شہر بخارا ہے۔ بخارا ماوراء النہر کے شہروں میں ایک قدیم، بڑا اور شاندار شہر ہے۔ دریائے جیہوں سے 2 روز کی مسافت پر ہموار زمین پر آباد ہے۔ اسلامی فتوحات سے پہلے یہ شہر سامانیہ ملوک کا دارالسلطنت تھا۔ کہا جاتا ہے مسلمانوں نے اس شہر کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 55 ہجری میں فتح کیا تھا۔ فتح ہونے کی تاریخ 88 یا 90 ہجری بھی بتائی جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے اسی تاریخی شہر بخارا میں 13 شعبان 194 ہجری میں آنکھ کھولی۔ امام بخاری کا اپنا بیان ہے کہ یہ تاریخ ولادت میں نے اپنے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پائی۔ اور بھی کئی صاحب علم و کمال بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علم کی گود میں پرورش پائی۔ والد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ چھوٹے ہی تھے۔ والدہ نے پرورش کی، ہوش سنبھالا تو دل میں احادیث کے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا، والد محدث جو تھے۔ لوگوں نے امام بخاری کو یہ کہتے سنا، اللہ نے مجھے اس وقت احادیث کے حفظ کا شوق دیا جبکہ میں ابھی مکتب میں تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 10-11 سال تھی۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ علامہ داخلی اس وقت بڑے پائے کے محدث تھے۔ بخارا میں ان کی درسگاہ بڑی بارونق اور مشہور تھی۔ معمول کے مطابق درس دے رہے تھے۔
इमाम बुखारी भी दर्स में शामिल थे। अल्लामा दाखिली ने एक हदीस की सनद बयान करने में गलती की। इमाम बुखारी ने अदब से टोक दिया और दुरुस्त सनद बयान कर दी। इस पर अल्लामा दाखिली ने आपको डांट दिया। इमाम बुखारी ने फरमाया, अगर आपके पास असल किताब हो तो उसमें देख लीजिए। अल्लामा दाखिली घर गए, असल किताब को देखा तो इमाम बुखारी का टोकना दुरुस्त था। चुनांचे उन्होंने इमाम बुखारी के सामने अपनी गलती तस्लीम कर ली। उस वक्त इमाम बुखारी की उम्र सिर्फ 11 साल थी। इमाम बुखारी को जिस तरह हिफ्ज हदीस का शौक बचपन ही में हो गया था, उसी तरह उनमें ये शौक भी पैदा हो गया कि सही अहादीस को गैर सही अहादीस से अलग करें और इल्म हदीस के हर शोबे से आगाही हासिल करें। गरज इन तमाम बातों की तरफ मैलान शुरू से ही था। फिर जूं-जूं वक्त गुजरता गया, उनके ये ख्यालात जड़ पकड़ते चले गए। उस जमाने में उन्होंने जिन असातिज़ा से इल्म हासिल किया था, उनके नाम ये हैं: मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी, मोहम्मद बिन यूसुफ बेकंदी, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मसनदी, इब्राहिम बिन अशस। इन उलमाए किराम की बुखारा में दरसगाहें थीं। उन्हीं दिनों का एक हैरत अंगेज वाकया अल्लामा सलीम बिन मुजाहिद बयान करते हैं। मैं एक रोज मुहद्दिस वक्त मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी की खिदमत में हाजिर हुआ। मुहद्दिस साहिब मुझे देखते ही बोले, तुम जरा देर पहले आते तो मैं तुम्हें ऐसे लड़के से मिलवाता जिसे 70,000 हदीसें याद हैं। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। हुलिया और नाम वगैरह पूछकर मैं उसी वक्त उनकी तलाश में निकला। आखिर मुझे मिल गए। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा ही ये दावा है कि तुम्हें 70,000 अहादीस याद हैं? इमाम साहिब ने उनकी बात सुनकर जवाब दिया, हाँ, बिलाशुबा मुझे इतनी अहादीस याद हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा। और सिर्फ याद ही नहीं, बल्कि जिस हदीस के बारे में सवाल करेंगे उसके रावियों की वफात, जायज सुकूनत और दीगर हालात भी बता दूंगा। और जो कौल या फेल सहाबी या ताबई का बयान करूंगा, उसके साथ ये भी बता सकता हूं कि उनका ये कौल और फेल किस आयत या हदीस से अख्ज़ किया गया है। एक रोज मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी ने सफर पर जाने से पहले इमाम बुखारी से कहा, तुम मेरी किताब को देख लो और इसमें जो गलती हो उसकी इस्लाह कर दो। किसी ने अल्लामा बेकंदी की ये बात सुनकर हैरत जाहिर की और कहा, आप फन के इमाम होकर एक नौजवान लड़के से ये फरमा रहे हैं, मेरी किताब में से गलतियां निकाल दो। अल्लामा बेकंदी ने उसकी बात सुनकर जवाब में फरमाया, हाँ, इस नौजवान का कोई सानी नहीं है। वो फरमाया करते थे, जब मोहम्मद बिन इस्माइल मेरे दर्स में आ जाते हैं तो मैं हैरत ज़दा हो जाता हूँ। हदीस बयान करते वक्त मुझे खौफ महसूस होने लगता है कि कहीं मोहम्मद बिन इस्माइल के सामने गलती ना हो जाए। ये सब बातें उस वक्त की हैं जब इमाम बुखारी मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी के दर्स में शरीक होते थे और उन्होंने अपने वतन बुखारा से हुसूल इल्म के लिए रहलत नहीं फरमाई थी। इमाम बुखारी ने जब वतन से रहलत फरमाई तो फिर अल्लामा बेकंदी को उनसे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। रहलत मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में वो सफर है जो हदीस या हदीस की असनाद हासिल करने के लिए किया जाता है। असहाब रसूल और ताबीन इस सफर के लिए क्या कुछ करते थे, इसका अंदाजा लगाना आज के दौर में मुमकिन नहीं। बाज औकात तो सिर्फ एक हदीस के लिए या सिर्फ एक हदीस की जांच के लिए एक एक महीने के सफर की तकालीफ बर्दाश्त करते थे। उस जमाने में सफर भी पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर होता था। इमाम बुखारी ने उम्र के 16वें बरस तक अपने ही मुल्क के असातिज़ा से इल्म हासिल किया। फिर आपने हिजाज का सफर किया। हिजाज इस्लामी उलूम का मंबा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन था। वहां वही उतरी, जिब्राईल आए, सहाबा का वतन और इस्लाम का मरकज था। हिजाज में आमद से पहले अब्दुल्ला बिन मुबारक और वकी की तसानीफ को जबानी याद कर चुके थे। ये 210 हिजरी की बात है। उस वक्त तक इमाम बुखारी ने अपने ही वतन में वो फजलो कमाल हासिल कर लिया था जो बड़े ताज्जुब की निगाह से देखा जाता था। ये कमाल बड़े बड़े इमामों को जिंदगी भर नसीब नहीं हुआ था। 16वें बरस अपनी वालिदा के साथ मक्का मुअज्जमा पहुंचे। इस सफर में आपके बड़े भाई अहमद भी साथ थे। वालिदा और भाई तो हज से फारिग होने पर वतन वापस चले गए, लेकिन इमाम बुखारी ने वहीं क़याम फरमाया। इल्म की तकमील के लिए अब आप मक्के के शयूख की दरसगाहों में शरीक होने लगे।
उस वक्त मक्के में फन के इमाम ये लोग माने जाते थे: इमाम अबुल वलीद अहमद बिन अर्ज़की, अब्दुल्ला बिन यजीद, इस्माइल बिन सालिम अस्साइग, अबू बकर अब्दुल्ला बिन जुबैर हुमैदी वगैरह। मक्के के बाद आपने मदीने का रुख किया। उस वक्त वहां दुनिया भर से लोग सफर करके आते थे, उलूम नबविया सीखते थे। आप 18 साल की उम्र में 212 हिजरी में मदीने पहुंचे। उस वक्त मदीने में ये हजरात दर्स देते थे: इब्राहिम बिन मुंजिर, मुतर्रफ बिन अब्दुल्लाह, इब्राहिम बिन हमजा, मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह, अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह उवैसी वगैरह। इसी सफर में उन्होंने अपनी तारीख कबीर का मुसव्वदा चांदनी रातों में लिखा। मुअर्रिखीन का कहना है कि आपने यहां 6 साल गुजारे, फिर बसरा का रुख किया। उस वक्त बसरा इल्म के मैदान में बहुत तरक्की पर था। बसरा में इमाम अबू आसिम नबील, सफवान बिन ईसा, बदल बिन मुहब्बर, हरमी बिन अम्मारा, अफ़ान बिन मुस्लिम, मुहम्मद बिन अरअरा, सुलेमान बिन हर्ब, अबुल वलीद त्यालसी, इमाम आरिम और मोहम्मद बिन सिनान वगैरह से इस्तिफादा किया। बसरा का इमाम बुखारी ने 4 बार सफर किया। बसरा के बाद कूफे का सफर किया। इसी तरह बगदाद की रहलत की। कूफे में उबैदुल्लाह बिन मूसा, अबू नुऐम, अहमद बिन याकूब, इस्माइल बिन अबान, हसन बिन रबी, खालिद बिन मखलद, सईद बिन हफ्स, तल्क बिन गन्नाम, उमर बिन हफ्स, कबीसा बिन उकबा, अबू गस्सान वगैरह से रिवायात ली और इसके बाद बगदाद का सफर किया। बगदाद उस वक्त खिलाफत अब्बासिया का दारुस सल्तनत था। हुकूमत की तरफ से इल्म की बहुत कद्र व मंजिलत होती थी, इसलिए बगदाद इल्म का गहवारा बना हुआ था। वहां हर तरफ से अहले कमाल जमा हो गए थे। बगदाद में उस वक्त ये शुयूख मौजूद थे: इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन ईसा सब्बाग, मोहम्मद बिन साइक और सुरैज बिन नौमान। बगदाद का इमाम बुखारी ने 8 मरतबा सफर किया, फिर शाम का सफर किया। शाम के बाद मिस्र, जजीरा, खुरासान, मर्व, बलख, हिरात के सफर किए। इन तमाम मकामात के शुयूख से इस्तिफादा किया। मुहद्दिसीन लिखते हैं, इमाम बुखारी इन तमाम शहरों में तलब इल्म के लिए गए और वहां क़याम किया। खतीब बगदादी लिखते हैं, इमाम बुखारी ने तमाम शहरों के मुहद्दिसीन की तरफ सफर किया। खुरासान और इराक के तमाम मुल्कों, हिजाज, शाम और मिस्र में हदीसें लिखी। बगदाद तो कई बार गए। जाफर बिन मुहम्मद कत्तान लिखते हैं कि मैंने इमाम बुखारी को कहते हुए सुना है, मैंने 1000 से जायद असातिज़ा से अहादीस लिखी और मैं सनद के बगैर कोई हदीस याद नहीं रखता। आपके तक़वे का आलम क्या था, इसका अंदाजा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि एक बार आपको समंदर का सफर करना पड़ा। आप जहाज में सवार हुए। आपके पास 1000 अशरफियां थीं। एक साहिब ने जहाज वालों को आपके बारे में बता दिया कि ये कौन है, लिहाजा जहाज वाले आपकी खिदमत में लगे रहे। इस काम के लिए उन्होंने अपना एक साथी मुस्तकिल तौर पर आपके साथ कर दिया। उसने खूब खिदमत की। इमाम साहिब उसकी खिदमत से बहुत मुतासिर हुए। बातों बातों में 1000 अशरफियों का जिक्र कर बैठे। एक सुबह उनका साथी सोकर उठा तो चीखने चिल्लाने और सर पीटने लगा और कपड़े फाड़ने की नौबत आ गई। लोग बहुत हैरान हुए। पूछा, आखिर हुआ क्या? जब सब इसरार करने लगे तो बोला, मेरे पास 1000 अशरफियों की थैली थी, वो गुम हो गई है। अब एक एक की तलाशी ली जाने लगी। इमाम साहिब ने चुपके से अशरफियों की थैली समंदर में गिरा दी। सबके साथ इमाम बुखारी की भी तलाशी ली गई। जब किसी के पास से भी थैली न मिली तो सबने उसे बुरा भला कहा। सफर खत्म हुआ। लोग जहाज से उतरे। तन्हाई में बात करने का मौका मिला तो वो शख्स उनके नजदीक आया और पूछा, आपने तो बताया था कि आपके पास अशरफियों की थैली है, फिर आपने उस थैली का क्या किया? इमाम बुखारी ने फरमाया, मैंने थैली समंदर में गिरा दी। वो ये सुनकर हैरान हुआ
बोला, आपके दिल ने इस कदर बड़ी रकम को जाया करना किस तरह गवारा कर लिया? आपने जवाब में फरमाया, मैंने अपनी तमाम उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तलब में बसर कर दी। दुनिया मेरे बारे में जानती है कि मैं कैसा शख्स हूं। थैली अगर मेरे पास से बरामद हो जाती तो लोग क्या कहते? जिस दौलत को मैंने तमाम उम्र हासिल किया उसको चंद अशरफियों की खातिर खो देता। इमाम बुखारी के वालिद अल्लामा इस्माइल एक बहुत ईमानदार ताजिर थे। वफात के वक्त उन्होंने कहा था, मेरे माल में से एक दिरहम भी हराम रास्ते से शामिल नहीं हुआ। उन्होंने काफी दौलत छोड़ी। ये सारी दौलत इमाम बुखारी को मिली। आपने उस माल को मुजारबत में लगा दिया। ये तिजारत की एक किस्म है। इस तरह खुद फारिग होकर इल्म नबवी की खिदमत में लग गए। आपकी तबीयत में मुरव्वत और रहमदिली बहुत ज्यादा थी। आपकी तिजारत में शरीक एक शख्स 25,000 दिरहम दबा बैठा। इत्तेफाक से वो उस शहर में आया जिसमें उस वक्त आप भी थे। आपको बताया गया कि आपका मकरूज आया हुआ है, उससे रुपया वसूल कर लीजिए। आपने जवाब में फरमाया, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि मकरूज को परेशानी में डालूं। मकरूज वहां से दूसरे शहर में चला गया। आपके अकीदतमंदों ने अर्ज की, आप हुकूमत से मदद ले सकते हैं। गवर्नर को एक खत लिखवा दीजिए। गवर्नर उसे गिरफ्तार कर लेगा और उसे कर्जा अदा करना पड़ेगा। इसके जवाब में आपने फरमाया, इस तरह हुकूमत का मुझ पर एहसान होगा। वो इस एहसान का बदला न जाने मुझसे किस सूरत में चाहेगी, लिहाजा मैं ये भी नहीं कर सकता। आपके अकीदतमंदों ने खुद ही खत लिखकर गवर्नर को भेज दिया। आपको पता चला तो फरमाया, तुम मुझसे ज्यादा मेरे खैरखा न बनो। फिर गवर्नर की तरफ आदमी भेजा कि मकरूज को कुछ न कहा जाए। इस तरह आपको 25,000 दिरहम में से कुछ भी वापस न मिला, लेकिन आपने उसे परेशान करना गवारा न किया। मिजाज में खुदा तरसी थी, रहमदिली और इंसाफ पसंदी बहुत थी। ये औसाफ गोया आप में कूट कूट कर भरे थे। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सियाफी कहते हैं कि मैं इमाम बुखारी के मकान पर उनकी खिदमत में मौजूद था। आपकी लौंडी आई और आपके पास से होकर दूसरी तरफ जाने लगी। उसका पांव दवात से टकरा गया, दवात उलट गई, रोशनाई गिर गई। इमाम बुखारी ने गुस्से से फरमाया, कैसे चलती है? लौंडी ने फौरन कहा, रास्ता न हो तो किस तरह चलूं? इस पर इमाम बुखारी ने गुस्से होने की बजाय उससे फरमाया, जा, मैंने तुझे आजाद किया। अब्दुल्ला बिन सियाफी कहते हैं, मैंने अर्ज किया, आपको तो उसने गुस्सा दिलाने की बात की और आप हैं कि उसे आजाद कर दिया। आपने जवाब में फरमाया, जो उसने कहा मैंने अपने नफ्स को उस पर राजी कर लिया। गोया इमाम बुखारी ने लौंडी को तंबीह नहीं की, अपने नफ्स को की। अबू हफ्स आपके वालिद के शागिर्द थे। उन्होंने तिजारत का कुछ माल आपकी खिदमत में भेजा। कुछ ताजिर शाम के वक्त आपके पास आए और उस माल को खरीदना चाहा। उन्होंने पेशकश की कि वो इस माल पर 5,000 नफा देने के लिए तैयार हैं। इमाम बुखारी ने उनसे फरमाया, इस वक्त आप चले जाएं, मैं कल इसकी बात पुख्ता करूंगा। ताजिर चले गए। सुबह हुई तो कुछ और ताजिर आ गए। उन्होंने उस माल को 10,000 मुनाफा देकर खरीदने की पेशकश की। आपने 10,000 मुनाफा लेकर माल देने से इनकार कर दिया और फरमाया, कल मेरे पास जो ताजिर आए थे, मैंने रात 5,000 मुनाफा लेकर उन्हें देने की नीयत कर ली थी, इसलिए ये माल मैं उन्हीं को दूंगा। मैं अपनी नीयत नहीं तोड़ सकता। उस वक्त असल मकसद माल की मोहब्बत से खुद को दूर रखना था। हफ्स बिन उमर अल अशकर कहते हैं कि हम लोग बसरा में हदीस लिखते थे। हमारे साथ इमाम बुखारी भी किताबत हदीस में शामिल थे। इस दौरान में हमने कई रोज तक उन्हें गायब पाया। तलाश किया तो अपने हुजरे में मिले और नीम उरिया हालत में थे। दरियाफ्त करने पर पता चला कि खर्च बिल्कुल खत्म हो गया है। बदन के कपड़े भी फरोख्त हो चुके हैं। आखिरकार हमने चंदा किया, आपके लिए कपड़े तैयार कराए। मतलब ये कि इस नौबत तक पहुंचने पर भी साथियों से जिक्र तक नहीं किया। अबू माशर जरीर एक नाबीना मुहद्दिस थे। एक रोज आपने उनसे कहा, अबू माशर, मुझे मुआफ कर दें। उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप किस बात की मुआफी मांग रहे हैं? कहा, आपने एक रोज एक हदीस बयान की थी,
میں نے آپ کو دیکھا، آپ بہت خوش ہیں اور خوشی کی زیادتی سے ہاتھ اور سر ہلا رہے ہیں۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر میں مسکرا اٹھا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ ابو معاشر نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ سے کسی طرح کی باس پرس نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی داڑھی میں سے تنکا نکال کر وہیں مسجد میں ڈال دیا۔ جب تک لوگ آپ کی خدمت میں موجود رہے اور باتیں کرتے رہے، آپ کی نگاہ برابر اس تنکے کی طرف رہی۔ آخر لوگوں کی نظر بچا کر آپ نے اس تنکے کو اٹھایا اور اپنی آستین میں رکھ لیا، پھر مسجد کے باہر ڈالا۔ یہ مسجد کا ادب اور احترام تھا، اور مطلب یہ تھا کہ جس چیز سے داڑھی کو صاف رکھا جائے اس سے مسجد کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ خالد بن احمد زحلی بخارا کا گورنر تھا۔ اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ شاہی محل میں آ کر مجھے اور شہزادوں کو حدیث اور تاریخ کا درس دیں۔ امام بخاری نے صاف انکار کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ علم کے قدردان اب بھی موجود ہیں، جن کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو پیغام لے کر آیا تھا اس کی زبانی کہلا بھیجا۔ میں حرم شاہی میں جا کر خوشامدی نہیں بننا چاہتا، اس میں علم کی بے قدری ہے۔ اب گورنر نے درخواست کی کہ اگر آپ حرم شاہی میں تشریف لانا پسند نہیں کرتے تو شہزادوں کے لیے خاص وقت دیں جس میں عام لوگ نہ ہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اس میں عام خاص سب کا برابر حصہ ہے۔ میری درسگاہ اور مسجد کا دروازہ ہر وقت اور ہر شخص کے لیے کھلا ہے، جسے شوق ہو آ کر فائدہ اٹھا لے، کسی کے لیے روک ٹوک نہیں۔ میں کبھی ایسی درخواست منظور نہیں کر سکتا۔ اگر میرے جواب سے ناخوش ہو تو بزور میرا درس روک دو۔ اس صاف اور بے لاگ جواب سے والی بخارا سخت برہم ہوا اور شہر سے آپ کو باہر نکالنے پر تل گیا، لیکن امام بخاری کا سکہ تمام مسلمانوں پر ایسا جمع ہوا تھا کہ وہ طاقت کے بل پر بھی کچھ نہ کر سکا۔ آخر دوسرا طریقہ اختیار کیا، چند لوگوں کو اس بات کے لیے مقرر کیا کہ امام بخاری پر کوئی ایسا الزام لگایا جائے کہ عام لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں۔ چنانچہ ایک جھوٹا الزام لگایا گیا اور شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ امام بخاری قرآن کے الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔ اس پر شہر میں ہنگامہ کھڑا ہوا۔ یہ ہنگامہ بھی دراصل ان لوگوں نے کھڑا کیا تھا۔ آپ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ شہر سے جاتے وقت آپ نے یہ بد دعا دی، اے اللہ، جس بات کا ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے تو وہی بات ان کی اپنی ذات اور ان کی اولاد میں دکھا۔ چند روز بعد ہی اس دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ خراسان کے حکمران نے بخارا کے حاکم خالد بن احمد زحلی کے بارے میں یہ فرمان جاری کیا کہ اسے گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھمایا جائے، اس کے بعد قید میں ڈال دیا جائے۔ انجام یہ ہوا کہ یہ قید میں ہی مر گیا۔ جن لوگوں نے امام بخاری پر الزام لگانے میں حصہ لیا تھا ان میں سے ہر ایک کا انجام بد سے بدتر ہوا۔ ان میں سے حریث بن ورقہ کو تو وہ ذلت اٹھانا پڑی جو بیان سے باہر ہے۔ الزام لگانے کے لیے حاکم بخارا نے اس شخص کو آگے کیا تھا۔ امام بخاری بخارا سے نکل کر بیکند پہنچے، لیکن اس الزام کی خبر بیکند بھی پہنچ چکی تھی۔ وہاں دو فریق ہو گئے۔ ایک امام بخاری کو اس الزام سے بری سمجھتا تھا، دوسرا گروہ مفسدوں کا تھا۔ امام بخاری نے اس صورتحال میں وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس دوران میں سمرقند کے لوگوں کو آپ کے بیکند پہنچنے کی خبر مل گئی۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ سمرقند تشریف لے آئیں اور مسند درس سنبھالیں۔ آپ نے درخواست منظور فرمائی اور سمرقند کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں خرتنگ نامی بستی میں ایک عزیز کے مکان میں ٹھہرے۔ تہجد کی نماز میں آپ نے دعا کی، اے اللہ، تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ چند روز کے بعد آپ نے وہیں وفات پائی۔ جس عزیز کے ہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس کا نام غالب بن جبریل تھا۔ وہ کہتے ہیں چند روز تک امام بخاری میرے مکان پر تندرست رہے۔
आखिर बीमार हो गए। इसी हालत में समरकंदियों की तरफ से दरखास्तें आने लगी। बहुत जोर दिया गया कि आप समरकंद तशरीफ ले आए। आपने हालत मरज ही में जाना मंजूर फरमा लिया, लेकिन उस वक्त उन्हें मालूम हुआ कि बुखारा का फितना समरकंद में भी पहुंच चुका है और वहां भी 2 जमातें हो गई हैं। तो आपने अपने लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले, मुझ पर तेरी जमीन कुशादा होने के बावजूद तंग हो गई है। उधर इख्तिलाफात के बाद समरकंद वालों ने इस इल्जाम के बेबुनियाद होने पर इत्तेफाक कर लिया और आपको समरकंद ले जाने पर जोर दिया। आपने सवारी तलब की, चलने की तैयारी की, मोजे पहने, अमामा बांधा। एक साहिब ने सहारा देने के लिए दोनों बाजू थामे। सवारी की जानिब 15-20 कदम बढ़े होंगे कि फरमाया, मुझे छोड़ दो, कमजोरी बढ़ती जा रही है। इमाम बुखारी ने हाथ उठाकर कुछ दुआएं की और लेट गए। आपके जिस्म से बेतहाशा पसीना जारी हो गया, यहां तक कि आप ईद उल फित्र की शब 256 हिजरी में इंतकाल कर गए। उस वक्त आपकी उम्र करीबन 62 बरस थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रूह परवास कर जाने के बाद भी जिस्म पर पसीने का असर था। आखिर गुस्ल देकर कफर में लपेट दिए गए। ईद उल फित्र के दिन बाद नमाज जुहर वहीं खरतंग नामी बस्ती में आपको दफन कर दिया गया। इस तरह ये आफताब आलम, अहादीस रसूल का खादिम, दुनिया भर के इंसानों पर एहसान करने वाला, उलूम नबविया का माहिर रुखसत हो गया। मरने से पहले वसीयत फरमाई, मुझे सुन्नत के मुताबिक 3 कपड़ों में कफन देना, इनमें कुर्ता और अम्मामा न हो। इमाम बुखारी की वफात पर उलमाए उम्मत ने बहुत हसरत जाहिर की। यहया बिन जाफर बेकंदी ने आपकी वफात की खबर सुनकर फरमाया, इमाम बुखारी की मौत इल्म की मौत है। आपने कोई औलाद नहीं छोड़ी, ये दुरुस्त है। आपने कोई सुलभी औलाद नहीं छोड़ी, लेकिन आज इमाम बुखारी की रूहानी औलाद करोड़ों में है।